अभी भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। क्राइम ब्रांच ने आरोपी आशीष मिश्रा को समन किया है आज सुबह 10 बजे। अब कुछ ही देर में बताया गया है कि उनको पेश होने का समन कल उनके घर के बाहर चिपका दिया गया था, मंत्री जी के घर के बाहर। ये वो समन की कॉपी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आज खीरी में अपराध शाखा कार्यालय में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 3 दिन से लापता हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा। उनके खिलाफ संगीन धाराएं हैं, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इससे पहले अभी तक ढुलमुल रवैया अपनाए बैठी यूपी पुलिस ने आखिरकार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में गिरफ्तार 2 लोगों के नाम है लवकुश और आशीष पांडे। ये दोनों ही उस थार एसयूवी में मौजूद थे जिसने किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि जो 3 अज्ञात आरोपी हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1 नामजद आरोपी आशीष मिश्रा और 1 अज्ञात आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। Just one question, ma'am. I just have one question. That it's been 5 days now. It's a murder case. There are many senior, like for instance, the retired Supreme Court Justice Madan Lokur said the other day that in a murder case, there should be an arrest first. But it's been 5 days, and you are saying that you are going to summon the accused. You're going to record a witness. किसी भी पोस्टमार्टम में there have been 2 postmortems which have been conducted by panel of experts called in from very reputed institutes, and instances of firing or any firearm injury has not been found upon. Therefore, now we'll have to proceed ahead with other evidences which have been given. 2 detained and 3 have been put under arrest. 3 have been accounted for. Okay, accounted for. 2 have been not detained as yet, but 2 have been called for summoned for questioning, and the questioning is going on. Ma'am, there are some suggestions from many people in the opposition parties and others that the police is attempting to shield a high-profile accused who is the son of a union minister. You are more or less the in charge of this zone. How do you respond to these allegations? It's been 5 days and the murder accused has not even been questioned. I will not comment on the comments made by any opposition party because that is not my domain. We have lodged an FIR. We have not gone into the background of whosoever the accused is. The law of the land is very clear on this point, and it will proceed in a common way for everyone, and nobody, I repeat, nobody who has been involved in the incident will be left out. So this time that is being taken is not jarring according to you? It doesn't strike you as something that would not happen? Please help out. Please help me out. I have already issued a number. Please help me out. Provide me evidences. I will definitely go for it. So right now you don't have any evidence against him. Is that what you're saying? Again and again you are calling for a murder case. I'm really sorry. I have to ask you because this is the case where there is a high-profile accused and no arrest has been made. Again you are calling for a murder case. You should be very well aware that an inquiry commission has also been established for the inquiry. We will have to proceed. We will have to gather. There are so many umpteen number of evidences. All have to be forensically examined. All have to be very well documented. All have to be brought on record. That takes a little bit of time. लखीमपुर में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कल समन चिपकाया गया था, आज 10 बजे उन्हें पेश होना था, 10:07 हो रहे हैं। क्या कुछ खबर लग पा रही है आशीष मिश्रा के बारे में? कई संगीन धाराएं उनके खिलाफ है, बताया जा रहा है वो लापता है 3 दिन से। इससे पहले हम देख रहे थे मीडिया में वो बयानबाजी भी कर रहे थे, काफी इंटरव्यूज दे रहे थे, क्या खबर? जी देखिए जया, ये आप देखिए कि ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और यहाँ पर डीआईजी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। और जो पूरा यहाँ पर मीडिया का तमाम सारा जमावड़ा है और सारे लोग की उम्मीद है कि शायद यहाँ पर आशीष मिश्रा पूछताछ करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो पुलिस के सामने, लेकिन फिलहाल 3 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है और मीडिया के भी सामने वो नहीं आए हैं, वरना एक समय था जब मीडिया में बार बार वो आ रहे थे। तो फिलहाल देखना यही होगा कि क्या पुलिस के सम्मन पर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ में तमाम सारी संगीन धाराएं लगी हुई हैं। वो लखीमपुर कांड के आरोपी भी बनाए गए हैं।
कल हमारी जब आईजी लक्ष्मी सिंह से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि एक जो वायरल वीडियो हुआ है जिसमें थार से एक शख्स भागता हुआ दिख रहा है, उसके बारे में ये बताया गया कि उसका नाम है सुमित जायसवाल उर्फ मोदी, तो उसको भी सम्मन दिया गया है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन जो आशीष मिश्रा के खास साथी हैं और ये बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो फॉर्च्यूनर वहां पर थी, अंकित दास उनका नाम बताया जा रहा है, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि नहीं करेगी, वो आखिर कहां पर हैं, उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं जवाब दे पा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही इस वक्त की है कि लखीमपुर खीरी पुलिस के बुलाने के बावजूद 10 बजे उनको टाइम दिया गया था, उनके घर के बाहर सम्मन चिपकाया गया था कि आप 10 बजे प्रस्तुत हो पुलिस के सामने। पुलिस की तो टीम यहां पर पहुंच चुकी है, डीआईजी यहां पर पहुंच चुके हैं मॉनिटरिंग कमेटी के, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा का यहां पर कोई अता पता नहीं है और आशीष मिश्रा अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो अब देखना है कि आज आशीष मिश्रा यहां आते हैं या नहीं, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। अगर कानून का पालन करवाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं तो उनके बेटे को जरूर जो है वो कानून का पालन करते हुए यहां पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल उपस्थित होना चाहिए और कानून सबके लिए एक बराबर होता है। लेकिन यहाँ गृह राज्य मंत्री के बेटे जो आरोपी, नामजद आरोपी है इस मामले में, हत्या जैसी गंभीर मामलाएं उनके धाराएं उनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। 3 दिन से वो लापता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंजन इस पूरी जानकारी के लिए।